Okay, good evening, friends. How are you? We are again back with another live, that is with Miss Savita Sinha. She is relationship expert with in-laws. I know आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे relationship expert वो भी in-laws के साथ. I know this is a very new topic. So let's welcome Miss Savita Sinha, and I'm your again the host Preeti Kapoor from live from the channel It's All About You. Savita ji, I just welcome you on my show ओ जिंदगी. इट्स अ टॉक शो. हम यहाँ पर उन टॉपिक्स को टच करते हैं जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, एंड इन लॉज का एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सीरियसली लोग बात नहीं करना चाहते हैं. आप मानती हैं इस चीज को? Absolutely. First of all, many thank you for having me on the show. मैं अक्सर सुनती हूँ आपका शो और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स, एक्चुअली नॉट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स पे आप बात करती हैं, and it is contributing to lot many people's lives. So thank you so much for that. Thank you so much. Thank you so much. This indeed is a topic which is not that much spoken about, as in seriously. It's a topic which is, I think, mostly about gossip or complaints. But today, I think we are prepared to talk about something more and some solutions. Over to you. Great. So actually, I'm also privileged to have you as, a person who can talk about this topic, because मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं, पर जब आप लोग जान जाएंगे ना तो आपको एक्चुअली में गूज़बम्स आएंगे कि इनका प्रोफेशन क्या है और ये कैसे रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनी. जब मैंने इनसे फर्स्ट टाइम मिली और मैंने इनसे बात की तो मेरे लिए भी था रियली ऐसा भी कुछ होता है. So thank you for bringing out this topic, Savita ji, and बिना time waste किए, because हमारे viewers will keep on joining in, and that's the beauty of this show, that we don't wait, we just start our show. So if you allow, can we start the show? Ji. Thank you so much. Thank you. So just tell me, Savita ji, little bit about yourself. आप क्या करते हैं, कैसे आए? मुझे तो पता ही है, but viewers want to know आप क्या करते हैं, कैसे आए, and why you wanted to become a relationship expert with in-laws, especially with in-laws. I'm stressing this word again and again, and rather than becoming just a relationship coach, because there are so many relationship coach around and who are doing fine, but why only in-laws? So अपने बारे में कुछ बताइए please. Wow, thank you so much. So अपने बारे में बताने से पहले इस सवाल का जवाब है कि मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट विद इन-लॉज कैसे बनी. बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी. अगर सिर्फ मैं लॉयर होती तो भी मैं शायद रिलेशनशिप विद इन-लॉज एक्सपर्ट नहीं होती, और अगर मैं लॉयर ना होती तो भी मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट विद इन-लॉज नहीं होती. So this tells you about myself. I'm the founder director of Hapros Law Service. We do civil and corporate matters, and I'm also an author of a book called Rising in Love with Your In-Laws: Unlocking Code to Extraordinary Relationship with Your In-Laws. Yes. Thank you so much, Preeti. And तो आई हैव बीन, मैं बताती रहती थी, लोगों को काउंसिल करती थी, बहुत सारे लोगों को मैंने इन्फ्लुएंस किया, फैमिली में, फ्रेंड्स में और क्लाइंट्स में. क्लाइंट्स जब मेरे पास आते थे मैट्रिमोनियल के, तो 2-3 मीटिंग्स के बाद, जब वो अपने मैटर्स लेकर आते थे, 2-3 मीटिंग्स के बाद ना, their perspective towards their in-laws that would change. तो बहुत सारे मैटर्स रिजॉल्व हुए, बहुत सारे मैटर्स जो कोर्ट रूम में पहुंचते वो पहुंचे नहीं, उसके पहले ही रिजॉल्व हुए. और मैंने एक एम्पेरिकल स्टडी किया, उसमें मैंने देखा कि जो 70% ऑफ द केसेस होते हैं मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स, कस्टडी, सेपरेशन, इंक्लूडिंग क्रुएल्टी का जो सेक्शन है आईपीसी, उसमें इन-लॉज का जिक्र होता था. तो मैंने देखा कि अगर मैं इस स्टेज पर कुछ कर सकूं तो बहुत सारे केसेस रुक जाएंगे, बहुत सारी जिंदगियां डे टू डे लाइफ में पीपल कैन लिव मच हैप्पियर एंड मच मोर अकोमोडेटिव लाइफ विद देयर इन-लॉज. तो वहां से फिर मैंने इसको चुना कि क्योंकि मेरे पास वो क्लाइंट्स उस रिलेटेड भी आते हैं और मैं उनको उस तरीके से काउंसिल कर सकती हूँ. और बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स के बाद फिर मैंने किताब निकाली है
it is making difference in many people's lives. Thank you so much. ग्रेट। मतलब शायद ही मैंने पहली बार किसी लॉयर को ये बोलते हुए सुना था कि मैं मतलब बिल्कुल डाइवोर्स तक की नौबत ही नहीं आने देती, वो चीजें वहीं पे सुलझा देती हूँ। यूजुअली लॉयर्स कहते हैं यार पैसा आना है तो भैया छुटकारा, मतलब 2-3 हेयरिंग्स से लंबा कराओ, केस कराओ और छुटकारा पिलाओ। बट दिस इज रियली अ गुड थिंग, बिकमिंग अ लॉयर एंड देन helping this issue and taking this issue, which is really a great thing. बिकॉज इन लॉस एक ऐसी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सबकी दुखती रग है, दुखती रग जरूर है, कईयों के लिए गॉसिप है, कईयों के लिए दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट शायद मैं, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू हैव इन लॉस, तो मेरे को पता है कि जब तक बड़ों का साया होता है यू फील सिक्योर। आई बिलीव दैट वेरी ट्रूली। तो अगर रिलेशनशिप उसमें सुधर जाता है, मे बी इट्स डाउन द लाइन, और आपके शादी करने से भी पहले अगर आप उनको समझ जाते हो तो आई थिंक लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज जो मेरे दिमाग में एकदम से आपसे बात करते करते आई, जब हम इन लॉस की बात करते हैं ना तो सबसे पहले एक लड़की आती है दिमाग में। जब आप एक एक्सपर्ट हैं रिलेशनशिप में, तो आप मुझे बताइए क्या ये लड़की और लड़के दोनों के लिए है या सिर्फ इट्स ओनली फॉर गर्ल्स? मतलब बिकॉज इन लॉस तो दोनों तरफ ही है ना। लॉस तो दोनों के होते हैं ना। तो बॉयज इसलिए भी होते हैं इसमें? absolutely, in fact one of my first cases was of a boy only. वो He was facing severe difficulties with his in-laws, and I have referred to this, मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। जैसे कि वाइफ से उसको बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन मिलता था, उसकी बात नहीं सुनती थी, बहुत कंप्लेन करती थी वाइफ उसके बारे में। तो फादर इन लॉ का कहना था कि मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि आपकी बेटी जो कंप्लेन कर रही है वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, एज अ वाइफ वो आपको कंप्लेन करती है, बट आप एज अ फादर इन लॉ कैन यू सी सम गुड थिंग्स इन योर सन इन लॉ। तो पहले तो ही वाज लाइक नहीं नहीं, इतना परेशान हो जाती है, सुनते नहीं है उसकी। मैंने कहा दैट्स अनदर थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी एक अच्छाई है तो बताओ। एंड देन ही नरेटेड दैट यस, मतलब मैं जब भी जाता हूँ मेरा पूरा ख्याल रखता है, मुझे एक पैसा नहीं खर्च करने देता, मेरी टिकट्स भी बुकिंग करता है। और तो फिर मैंने कहा यू शुड शेयर दैट विथ योर डॉटर। फिर उसने उस डॉटर को शेयर किया। इसी को मैंने किताब में रिपल इफेक्ट कहा है, इस टेक्नोलॉजी का रिपल इफेक्ट कहा है। तो फिर जब उस बेटी के साथ शेयर किया तो बेटी का पर्सपेक्टिव चेंज करने लगा। एंड द सन इन लॉ कॉल्ड मी अप टू से दैट मैम आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव सच ग्रेट इन लॉज। तो पूरा गेम ही बदल गया। और अब तो इतने ज्यादा केसेस भी इतने आ रहे हैं जिसमें कि मेल्स बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है इन लॉज का। आई थिंक एक्चुअली क्या है ना, ज्यादातर जो इम्प्रेशन है कि लॉज जो हैं वो विमेन से विमेन फेवरिंग लॉज हैं, ये इम्प्रेशन मतलब पर दिया गया है एटलीस्ट फॉर द पास्ट 15-20 years वी कैन से, जिस तरीके से चीजें हुई हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो लड़के वाले हैं, इन हार्ड रियलिटी में शेयर कर रही हूँ आपके साथ शो में, आई मीन आपके टॉक शो में, तो वो थोड़े से फिर भी सहम गए हैं, आप कह लो थोड़े कॉशियस हो गए हैं। और इसके कॉन्ट्रास्ट में द गर्ल साइड आर वेरी, मतलब थोड़ी सी बात पे भी हम आपको कोर्ट में देख लेंगे एंड ऑल दैट। तो आज के पर्सपेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन बहुत सही है कि मेल्स को भी बहुत पहले भी होता था, मगर अब और ज्यादा ही, आई थिंक इट इज नाउ मोर रेलेवेंट एंड दैट्स हाउ आई हैव रिटन द बुक आल्सो। जो मेरी किताब है और जो वो कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल है, एज न्यूट्रल है और रिलेशनशिप विद इन-लॉज न्यूट्रल है। मैंने 3 बार पढ़ ली है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी आई हैव कंप्लीटेड माय 3rd रीडिंग ऑफ द सेम बुक। बुक मैंने शायद ऐसे ही ले ली थी बिकॉज वी मेट समवेयर, और ठीक है इन लॉज मेरे हैं, आई गॉट मैरिड 18 years पहले, तो मुझे लगा यार मेरी लाइफ सॉर्टेड है। एंड ट्रस्ट मी आफ्टर रीडिंग दिस बुक, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ जो ये शो अभी देखेंगे बाद में देखेंगे, कि 3 बार पढ़ने के बाद भी अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैं चौथी बार और पढ़ूंगी तो इसमें से कुछ नया आएगा। 18 साल के बाद भी शायद मैं अपने इन-लॉज को नहीं समझ पाई। और जो आप पॉइंट बोल रहे हो कि यस, मेल्स आर आल्सो विक्टिम ऑफ दिस, मेल्स आर आल्सो फेसिंग दिस रिलेशनशिप विद इन-लॉज का प्रॉब्लम। एक्चुअली ना हम लोग विमेन कार्ड प्ले कर जाते हैं कि कुछ भी जरा सा हुआ चलो भाई कोर्ट चलो, क्योंकि शायद हम लोगों के लिए जो कोर्ट्स हैं या लॉ है वो बहुत लिबरल है, और मेल्स थोड़े से डरते हैं इस चीज से।
But this is a very good thing that males are coming forward and talking about this topic, because मैं भी यही मानती हूँ कि ये दोनों का प्रॉब्लम है. This is a problem जो दोनों को है. So this is a good thing. आगे जो हम लोग बात करेंगे उस बारे में भी आपको पता चलेगा कि जो कंसर्न्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. ओके. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आप इनकाउंटर करते हो एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट विद इन लॉज, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा आप और लोगों को बताओ. आई वांट दिस टू बी हाईलाइटेड, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े कि भाई हमें भी कोई सुनेगा, हमें भी कोई समझाएगा. दैट इज वेरी मच नीडेड नाउ. तो आप थोड़ा सा बताओ कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आप एनकाउंटर करते हो रिलेटेड टू इन लॉज. सबसे बड़ा इशू आता है इस क्वेश्चन को मैं 2 लेवल पर शेयर करना चाहूंगी आपसे. ओके. पहला लेवल है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और दूसरा लेवल है एक्चुअल प्रॉब्लम्स, और तीसरा लेवल है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है. तो इसका जो पहला थ्योरेटिकल लेवल देखे कि एक ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि कंपैरिजन बहुत मतलब कंपैरिजन तो हर रिलेशनशिप होता है, माँ बाप भी कंपैरिजन करते हैं बच्चों की, बट उतनी बातें बुरी नहीं लगती. मगर इन लॉज के साथ ये बहुत बुरी लगती है अगर वो करें, और वी आर ओके टू कंपेयर देम आल्सो बहुत इजीली, मे बी विद आवर पेरेंट्स और आवर स्पाउस और with friends, relatives, किसी से भी comparison is a big killer in relationship with in-laws. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट होता है सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ओपिनियंस. नई नई शादी हुई है एंड एक फुआ सास शी वॉक्स इन की तुम्हारी मदर इन लॉ तो ऐसी ही थी. अब वो उनका एक क्वेश्चन होगा, बट अब कुछ भी आगे होता है तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, हाँ उन्होंने भी कहा. सो अब हम उस दोनों, इसको मैंने किताब में भी लिखा, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ओपिनियंस, हम उस दोनों सुपर स्ट्रक्चर से उनको देखते हैं, तो वो हमें अलाउ ही नहीं करता है चीजों को कुछ और देखने के लिए. और जो तीसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, रेसिप्रोसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है. ये 3 यूनिकनेस है इस रिलेशनशिप की. मैंने किया, मुझे उतना नहीं मिला, या मैं जिस कदर मैं चाहती थी मुझे उस तरीके से नहीं मिला. तो ये सब दीज आर द कोर इश्यूज. आप इसमें अब आप कोई भी इशू ले लें, कंपैटिबिलिटी इशू ले ले, पेरेंटिंग इशू ले ले, ग्रैंड पेरेंटिंग इशू ले ले, एडजस्टमेंट इशू ले ले, तुम्हारा मेरे पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव है ये वाला क्वेश्चन ले ले, तुम्हें क्या सिखाया ये वाला क्वेश्चन ले ले, पार्टीशन में किसको कैसे होगा, विल में किसको क्या जाएगा ये क्वेश्चन ले ले. मतलब उसमें आप कुछ भी ले लो, ये मोटा मोटी इसी 3 में आए, राइट. तो उसके यही इश्यूज मोस्टली कॉमन आते हैं. और जो ये मैंने आपको वो बताया है जो कोर इश्यूज है, जो ये उभर के तो इसी तरीके से आते हैं कि जी मेरा बात नहीं सुनती, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, एडजस्ट नहीं करते, समझते नहीं है, और हमारी मैरिटल कंपैटिबिलिटी इफेक्ट हो रही है, और यहाँ तक इफेक्ट हो रही है कि अब हम रह भी नहीं सकते साथ में. तो दिस काइंड ऑफ इश्यूज कम. And happy to say that in the book you will find a complete code. It's a complete code to resolve any and every issue. जो कि कोई भी आपको and it's a self help and instantly help others book. अगर आप खुद नहीं भी डील कर रहे हो, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका everything is sorted and it is fine, it's a great news. Even then अगर आपके पास कोई आता है, आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि ज्यादातर हम सपोर्ट करते हैं, हाँ यार उसके साथ हुआ था, उसने भी कर ले, एडजस्ट कर ले. मगर इस किताब में आपको वो पर्टिकुलर कोड मिलेगा, वो एक आइडियोलॉजी मिलेगी जहां से आप उसको पावरफुली सपोर्ट कर सकते हैं. सो मतलब एक्चुअली मिशन जो है किताब का, वो एक तो ये हो गया कि लोगों की मतलब शादियां बचे, रिजॉल्व करें dispute. एक ये भी हो गया कि घर घर में काउंसलर्स होंगे, as a sibling, as a friend, as a mother-in-law, as a daughter. You're a counselor yourself. आप अपना कंपटीशन ही क्रिएट कर रहे हो. No. I'm replicating myself. You may say that. नहीं, एक्चुअली हम लोगों को, मतलब मैं जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग जब भी बात करते हैं और कोई भी अपने इन-लॉज के बारे में बात करता है, स्पेशली फीमेल्स का ही टॉपिक होता है. मेल्स को तो मैंने सुना नहीं, बट आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मेल्स भी पक्का बात करते होंगे अपने इन-लॉज के बारे में, जो हमें नहीं पता है.
तो फीमेल्स जब बात करती हैं तो उनके पास एक ही, ये जब टॉपिक हो रहा होता है तो उनको जो सलाह भी दे रहा होता है ना, वो एक ही सलाह देता है, अरे नहीं जम रही तो अलग हो जाओ, बस। वो उसका कोर्स सोल्यूशन नहीं बताते हैं कि कैसे जमेगी। आप ये नहीं सोचते हैं कि बेटा अगर किसी का एक ही है, वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाएगा कहाँ। ठीक है, जिसके दो तीन है समझ में आता है कि ठीक है एक अलग हो गया बाकी एक है, बट बाकी लोगों के लिए तो बहुत ईजी है ये बोलना कि चलो ठीक है नहीं जम रही तो अलग हो जाओ। बट आज आपसे बात करके मतलब मुझे, मेरी खुद की आंखें खुल रही हैं कि यही सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन बहुत है। हम इतना कुछ आपकी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है राइजिंग इन लव विद योर इन लॉज, है ना? तो आपके से भी सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा इस बुक के बारे में बताइए, क्यों लिखी, किसने लिखी, क्या है इस बुक में? बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं लकी थी शायद कि मुझे राइट टाइम पे मिल गई या लेटर मिल गई, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको इस बुक की जरूरत है बट दे डोंट नो दैट इट इज अवेलेबल, और क्या है, हाउ इट कैन हेल्प। बिकॉज लोगों को बहुत अजीब सा लगता है, जैसे हम डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स की बात करते हैं तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, दे हैव दैट फियर कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम पागल थोड़ना है, राइट? तो मैंने जैसे ये टॉपिक्स उठाए थे, वैसे ही मेरे लिए ये टॉपिक भी बहुत दिल के क्लोज है, रिलेशनशिप विद योर इन लॉज। तो अभी भी लोग ये बोलना चाहेंगे अरे यार हम क्यों पब्लिकली बात करें अपने इन लॉज के बारे में, है ना? तो आप प्लीज उनको बताइए इस बुक में है क्या, आपने क्यों लिखी, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट, सो दैट ज्यादा से ज्यादा पीपल कैन कम फॉरवर्ड एंड परचेज इट। अगर परचेज नहीं भी करना तो किंडल एडिशन पढ़ें या आपको कंसल्ट करें, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो डिस्कस करके सॉल्व नहीं की जा सकती। Wow, so true, so true. I wrote this book क्योंकि मैंने जब केसेस, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, व्हेन आई जॉइंड लॉ, मतलब मैंने कॉलेज मिरांडा हाउस से किया है पॉलिटिकल साइंस में, एंड देन आई डिड लॉ फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, एंड इमीडिएटली मेरी रिक्रूटमेंट हो गई थी फेमस वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट कीर्ति सिंह। और उनके यहाँ सिर्फ मैट्रिमोनियल मैटर्स, कस्टडी मैटर्स, और बिल्कुल एक एनजीओ के भी आते थे और बड़े बड़े लोगों के भी आते थे। तो मैंने उन 8 महीनों में, जो शुरू की 8 महीने की प्रैक्टिस थी मेरी, उसमें मैंने वो सारे देखे। एंड इनफैक्ट उस वक्त तो यंग भी थी, जस्ट लॉ ग्रेजुएट थी। मुझे लगता था मैं इतनी ऐसी ऐसी बातें, मैं शादी भी ना करूंगी। Who would like to marry? I mean, writing every day, researching every day, looking at those court matters. Anyway, फिर I went on to work with she retired as Supreme Court judge, Honorable Justice Indu Malhotra। यहाँ मुझे varied मिला exposure, और उसके बाद तो खैर it's a different journey altogether from corporate and Dubai का experience, and then I came and I started। और फिर जब मेरे पास मैट्रिमोनियल आने लगे, देखो कैसा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ। एक वो जमाना था कि मैं वो पढ़ कर मैं शादी ना करती, एक वो जमाना था। और जब मैंने ये 2007-8 से मतलब मैंने काउंसलिंग काइंड ऑफ शुरू की थी इस इशू पे, तो जब चीजें रिजॉल्व होने लगी, फ्रेंड्स फैमिली को इन्फ्लुएंस करने लगी, मैं क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस करने लगी, और जब ये डेटा आया कि माय गॉड द काइंड ऑफ मतलब ये झूठे केसेस बनते हैं इस तरीके के, और कितनी परेशानी हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये जो मैसेज है, क्योंकि अभी तक तो मैं उनको काउंसिल कर पाती थी जो मेरे पास आते थे, तो बुक लिखने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये बुक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, ये कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचे। दैट वाज माय सिंगल इंटेंशन, इफ आई मे से सो। उसके आगे, और उसका इफेक्ट का था मेरे को क्लैरिटी थी, दो चीजों की क्लैरिटी थी। पहली कि चीजें प्री लिटिगेशन स्टेज पे क्लोज हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। दूसरी, लिटिगेशन हो भी रही है तो शांति से रिजॉल्व हो जाए। ये जो लंबी लंबी बैटल्स चलती है ना, पूरी मड स्लिंगिंग होती है, ये सब इससे बहुत पीस ऑफ माइंड भी नहीं रहता। बच्चे कितने अफेक्टेड होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन कितनी, लोगों को मेंटल इश्यूज कितने होते हैं इन पूरे स्ट्रेस में, तो उससे भी लोग बचेंगे। प्लस कोर्ट के पास भी समय मिल जाएगा, जो सीरियस इश्यूज है उनको कंसिडर करने का। अभी क्या होता है कि एवरीबॉडी कीप्स कंप्लेनिंग, कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है, तारीख से तारीख। अरे कोर्ट करे क्या, आप हर बात पे चले जाते हो। कोर्ट इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, राइट? So that was my third agenda of writing this book. And fourth, I wanted this book to be, मतलब ये बुक को अगर कोई पढ़ ले ना, तो उसको शायद कुछ और पढ़ने वढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। मैंने उस तरीके से इसको बनाई। थ्योरी की बात हुई है इस बुक में,
थ्योरी की बात यह है कि अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, प्लीज समझिए सामने वाले का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अपनी ऑनर आप चाहते हो कि आपका ऑनर, तो भैया प्लीज दूसरे का भी ऑनर कर लो, राइट? दिस कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव फाउंडेशन। और मैं बहुत ले टर्म्स से बता रही हूँ सो दैट व्यूअर्स कनेक्ट कर सके। और दूसरा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को, अभी जो सिनेरियो होता है, क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादातर इशू हमें कब, जब रिलेशनशिप खट्टे हो जाते हैं। तो जब खट्टा हो गया रिलेशनशिप में, तो कहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू हैव अ पॉइंट ऑफ, नहीं है। तो इस स्टेज पर कैसे आए, उसका है सेकंड थ्योरी, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ राइजिंग इन लव, कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। तो मान लीजिए कि किस कोई आपका, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ननद, जीजा जी साली का इनफैक्ट मैं लेती हूँ, क्योंकि मेल का भी आपने उठाया। तो अगर हम सिर्फ जीजा जी को यहाँ से थैंक कर सके दैट हाउ मच यू टेक केयर ऑफ माई सिस्टर, आप बाकी चीज कर रहे हो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को रिगार्ड कर रहे हो कि नहीं, बट आई एम जस्ट सो थैंकफुल दैट यू टेक माई सिस्टर सो मच, आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर दैट। तो इससे क्या होता है, आप कॉन्शियसली अगर उसी बात पे कर रहे हो, फिर आप जीजा जी को थैंक करो कि योर पेरेंट्स आर सो ग्रेट, योर सिबलिंग्स आर सो ग्रेट, ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ माई सिस्टर सो वेल। तो व्हाट हैपेंस कि आपको फिर वो अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि ठीक है, जीजा जी 5 चीजों मेरी एक्सपेक्टेशन थी, 3 चीजें वो कर रहे हैं, एंड आई मस्ट 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 अप्रिशिएट दैट। तो वहां से फिर चीजें बदलने लगती हैं। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। किताब में 3 कॉमन हिंड्रेंस जो मैंने शुरू में शेयर की, कंपैरिजन, सुपरस्ट्रक्चर ऑफ ओपिनियन एंड रेसिप्रोसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अगर आप ध्यान दोगे प्रीति, एक्सपेक्टेशंस की बात तो हर कोई करता है, सभी मगर करते हैं, रेसिप्रोसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। ये जब मैं किताब लिख रही थी, आई रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर वो इवेंट मेरे सामने आता है जब मैं लिख रही थी, और मैंने जब ये कॉन्सेप्ट लिखा दैट यस एंड दिस इज, मतलब ये यूनिक है, ये 3 चीजें बहुत यूनिक और किलर है इस रिलेशनशिप के। तो आपको कोई भी आपका इशू हो, आपको वो 3 ब्रैकेट में आप डाल दोगे, दैट इज वन। और उसके बाद 2-3 चीजें और हैं, उसको आप कैसे प्रैक्टिस करो, और किताब पढ़ने के बाद आप अपने आप में डेवलप कर सकोगे कि मैं ऐसी कैसी प्रैक्टिसेस करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप जिम जाओगे, आप एक प्रैक्टिस बनाओगे, राइट? उसी तरीके से आप कोई ना कोई प्रैक्टिस में भी कि मैं वंस इन अ वीक मदर इन लॉ को ऐसे थैंक करूंगी, मैं वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, मैं जैसे इन माई केस 5 years बैक आई थिंक, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें 6 लोग थे, मैं, मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड और उनके पेरेंट्स। और मैं हर रोज एक कॉमन लिखती थी ग्रेटिट्यूड पोस्ट विच वॉज बाय माई मी एंड माई हस्बैंड फॉर ऑल 4 of them। वाह, प्रैक्टिस मैंने डेवलप किया था। तो अब आप, आपकी मर्जी है, आपको भी प्रैक्टिसेस की बात मैंने किताब में नहीं की, क्योंकि आई एम श्योर कि हम लोग इतने एनलाइटेंड और ये है कि हम लोग को डेवलप करेंगे। तो कंप्लीट कोड है ये किताब, इफ आई मे से। वाह, मतलब आई एम गेटिंग स्टिल गूज बम्स 3 बार पढ़ने के बाद भी। और जो चीजें आप कह रहे हो ना, शायद डेफिनेटली प्रैक्टिस, मैंने कल आपसे ऑफ द कैमरा बात किया था, एंड आई टोल्ड यू माय स्मॉल इंसिडेंट जो मेरे को 18 साल बाद क्लिक हुआ कि मुझे करना चाहिए, एंड इट रियली चेंज्ड माय लाइफ। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने बुक नहीं ली है तो प्लीज अमेजन पे जाके ऑर्डर करें। और तब भी नहीं है तो बेस्ट इज, सविता जी लास्ट में अपने बारे में बताएंगे, अपना नंबर जरूर शेयर करेंगी वो, तो आप डायरेक्टली उनसे बोल सकते हैं, एंड शी इज वेरी हम्बल लेडी एंड शी विल डेफिनेटली गाइड यू कि क्या करना है। बिकॉज ये चीज ना हम लास्ट तक लेकर चलते हैं, और ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। साथ साथ हम अपने बच्चों में भी इंक्लाइन करते हैं सेम चीज, दादी ने ऐसे बोला, दादू ने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, बट अगर हम खुद ये चीज अप्लाई कर देंगे तो बच्चों में ये चीज कभी नहीं जाएगी, एंड दे विल लव देयर ग्रैंड पेरेंट्स मोर देन यू डू। ये मेरी पर्सनल चीज है, बिकॉज नो बडी टेल्स दिस। हम उनके सामने जब बात करते हैं वो सुनते हैं, और उनके माइंड में एक ओपिनियन सेट हो जाता है, हाँ मेरी दादी ऐसी है और मेरे दादू ऐसे, या मेरी बुआ ऐसी है। बट सिर्फ पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करेंगे तो थिंग्स विल बी बेटर। घर में भी तो भाई बहनों के साथ रहते हैं, वहां तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो इन लॉज के साथ क्यों। तो सविता जी, मैं जितना भी थैंक्स आपको करूंगी ना, स्पेशली इस शो पे आने के लिए और ये बुक लिखने के लिए, ये लोगों को लगेगा कि हम सिर्फ कैमरा पे बोल रहे हैं, बट नहीं, जब तक वो बुक नहीं पढ़ेंगे वो नहीं समझेंगे कि मैं आपको इतना थैंक्स क्यों बोल रही हूँ। इट कैन चेंज यू आफ्टर 18 years ऑफ मैरिज ऑल्सो। आप समझोगे कि कितना माइन्यूट चीजें आपने मिस कर दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछने वाली हूँ, कैन रिलेशनशिप बिटवीन in-laws be improved? If yes, then please share some examples, and if no, then what is the final result? सिर्फ अलग होना ही रिजल्ट है या कुछ और भी? तो कैन रिलेशनशिप तो आपका ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में स्प्लिट करते हैं, दो, because you are asking me, I am a relationship expert with in-laws, so relationship with in-laws can always be improved no matter what. Okay. और अगर नहीं होता तो? नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन ऑल टुगेदर है. व्हाट हैपेंस, वो अलग बात है. इनफैक्ट इसको मैं वहां से डील करना चाहूंगी कि इम्पैक्ट क्या होता है अगर आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है. तो 2 अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन का यस और नो मैं नहीं बोल सकती. इन माय वर्ल्ड इट इज ऑलवेज अ यस. एंड द टिप इज कि पहली 2 अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली, देखिए शादी जब भी होगी ना, डाइवर्स बैकग्राउंड होंगे, डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यूज होगा, डाइवर्स लाइन ऑफ थॉट होंगे. एंड एज वी ग्रो अप, हम लोगों को आदत है कि कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अलाइन करे, हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू किसी से. हम लोगों को डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू की आदत ही नहीं होती. लेट्स सी द ग्रोइंग अप जर्नी. सबसे पहले नेटल फैमिली मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, राइट. तो पेरेंट्स सिबलिंग्स का जो प्यार है, जो उनका केयर है, कंसर्न है, वो तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस बचपन वाला वो सीप्ड इन होता है. अगर थोड़ी बहुत डाइवर्स, लेकिन उतनी डाइवर्सिटी फिर भी नहीं होगी, बैकग्राउंड फिर भी तो सेम होगा ना, दोनों को सेम पेरेंट्स ने पाला है, आपका सेम अपब्रिंगिंग रहा है, राइट. नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स. भाई फ्रेंड्स में तो नो सॉरी नो थैंक यू, सलमान खान ने उस जमाने में ही प्रोपोगेट किया था. सो उसमें तो रेसिप्रोसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस का चांस ही नहीं होता. सुपरस्ट्रक्चर ओपिनियन, आप किसी की ओपिनियन सुनती नहीं अपने फ्रेंड के अगेंस्ट. कंपैरिजन का मौका नहीं देती, भाई हमारा फ्रेंड तो फ्रेंड, राइट. तो वहां पर भी आपको ये इशू होगी. नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल. भाई प्रोफेशनल में ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, आपका घर चल रहा है उससे. तो वहां पर भी आपको यहाँ पे भी इतनी मुश्किल नहीं होती. यहाँ पर क्या होता है कि डाइवर्स भी है, नो सॉरी नो थैंक यू का तो पॉलिसी है ही नहीं. इनफैक्ट लगता है वो हमें थैंक यू बोले और मेरी गलती है फिर भी हम क्यों सॉरी बोले, अरे हम छोड़ सकते थे, हमें वो माफ कर सकते थे, वो बड़े हैं, राइट. और ओपिनियन तो खैर हम बड़ी लेते हैं दूसरों की. तो ये तीनों चीजें हो जाती हैं. तो जो एक बैकग्राउंड होता है कुछ लव का, अकोमोडेशन का, अप्रिसिएशन का, एक्नॉलेजमेंट का, कॉन्टेक्स्ट ही मिसिंग है. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ टिप, व्हाट आई हैव शेयर्ड विथ यू इज आप उस कॉन्टेक्स्ट पे काम करो. कॉन्टेक्स्ट पे कैसे काम करोगे? जस्ट अप्रिशिएट व्हाट गुड दे हैव इन देमसेल्व्स एंड डू नॉट थिंक कि वो गुड तभी है जब वो आपके लिए कुछ अच्छा करे. प्लीज, किसी भी व्यक्ति की जो पॉजिटिव्स हैं, दे आर नॉट जस्ट पॉजिटिव्स फॉर यू. अगर मैं सिर्फ अपना ही नाम लेती हूँ, किसी भी व्यक्ति की पॉजिटिव्स सिर्फ सविता के लिए नहीं है, राइट. The people's positives are a positives, they are a blessing for the whole world. Yes. I as Savita can acknowledge, appreciate, thank them for the blessing that they are for the whole world. So I think this is one tip that I would really want to give people, that जो भी आपकी जो भी रिलेशनशिप है उनमें आप एक अच्छी चीज पकड़ो. ये मत सोचो कि उन्होंने क्या मेरे लिए किया तब आप उसको थैंक यू बोलोगे. आपके हस्बैंड के लिए किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज से दिस, so many women, they really appreciate spouses, and I don't know whom do they give credit, because I have never found them appreciating their parents. मगर कोई बच्चा ऐसे ही नहीं इतना extraordinary होता है. उसको parents fill the cup of the child with so much love. उसके बाद ही तो वो overwhelm करता है, सौसर से वो प्यार जमाने को देता है. तो can we just be grateful for the roots of love that he has been given? अगर आप सब लोग सिर्फ एक ग्रेटफुल हो जाए ना अपने पेरेंट्स के लिए, तो आई थिंक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी गेट रेड ऑफ दिस. और हमारे पास सिर्फ गॉसिप का टॉपिक इन लॉज नहीं, बहुत सारी और भी चीजें रहेंगी. एंड आई थिंक दैट इज अ रियलिटी. हम सबकी चाहत होगी,
अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैम मैं कैसे इम्प्रूव करूं, मतलब उसकी चाहत तो है इम्प्रूवमेंट की, राइट? Yes. तो उसका रास्ता क्या है? आपने जब पूछा कि वो टिप क्या है, तो ये रास्ता है उसको, उनकी उसकी चाहत को फुलफिल करने का ये रास्ता है। रियली आई कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो एक तो आपकी बुक बुक के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है या उनके लिए भी जिनकी शादी होने वाली है? बिकॉज आई थिंक अगर वो संभल के जाएंगे, वो पढ़ के ही जाएंगे, या वो ये सब चीजें इंक्लाइन करके जाएंगे, तो शायद वहां पे लाइफ इजियर हो जाएगी। बिकॉज हम लोग सब कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी सिखा के भेजते हैं एडजस्ट करना। मुझे नहीं पता पेरेंट, मुझे आज आपकी बुक पढ़ने के बाद लग रहा था कि क्यों बोलते थे मेरे पेरेंट्स कि एडजस्ट करके जाना। देयर वाज नो नीड, देयर वाज नो नीड, इट वाज जस्ट अ चेंज ऑफ हाउस, डेफिनेटली चेंज ऑफ हैबिट्स, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पीपल, बट एडजस्टमेंट इट वाज नॉट वन वे, इट वाज बोथ वेज। मेरा हस्बैंड भी एडजस्ट कर रहा था शायद मेरे पेरेंट्स के साथ, जो शायद मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ने उनको नहीं बोला था, शायद उनको भी बोलना चाहिए था। बिकॉज ये आपकी बुक पढ़ने के बाद सीरियसली मैंने सब चीजें रियलाइज की हैं कि हमेशा हम लड़की को बोल के भेजते हैं यार एडजस्ट करना, नया घर है एडजस्ट करना, बट वाई? एडजस्टमेंट का जो इशू है, मैंने जब किताब लिखी तो वो उस इस एक पूरा चैप्टर मैंने डिवोट किया है इस टॉपिक को, क्योंकि इन माय एक्सपीरियंस एज अ पर्सन, इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ, आई एनकाउंटर्ड कि ये प्रॉब्लम दोनों को होती है, मेल और विमेन दोनों की होती है। विमेन को तुम इसलिए कह सकते हो कि उनको शिफ्ट करना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो वो इशू होता है, बट मेल्स को वहां से एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई आपको उनका, अगर हम करें उनको पॉइंट्स ऑफ व्यू को भी देखना है आपको, राइट? तो दैट इज ऑल्सो एन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इज नॉट जस्ट लिविंग विद देम, दैट इज ऑल्सो एन एडजस्टमेंट कि आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, इवन दैट इज एडजस्टमेंट टू योर इन लॉज, टू हिज इन लॉज, राइट? और इसका मैंने लिखा कि अकोमोडेशन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एडजस्टमेंट, से बड़ा लगता था कि बड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ा, दिस वेरी कॉमन कॉन्वर्सेशन, किसी की भी नई नई शादी होती है ना, बहुत। तो मैंने इसको किताब में वही लिखा है कि एडजस्टमेंट इज अबाउट आप अकोमोडेट कर रहे हो। क्योंकि देखिए, सभी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सर्वगुण संपन्न है। तो जब हम सर्वगुण संपन्न है नहीं, तो ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन कि दूसरा बंदा सर्वगुण संपन्न है? फ्यूटाइल है ये एक्सपेक्टेशन। तो उसके जो ब्लेसिंग्स है उसके साथ हम अप्रिशिएट करते हैं, इट अलाउज अस कि जो थोड़ी बहुत उसकी नेगेटिव्स है, नेगेटिव्स को मैंने किताब में लिमिटेशंस लिखा है। और दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कुछ लिमिटेशंस नहीं। एंड लिमिटेशंस आर नॉट टू बी रिडिक्यूल्ड, दे आर नॉट टू बी एनालाइज्ड, दे आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। लिमिटेशंस आर समथिंग जिसके लिए हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लिमिटेशंस, एंड I also take the responsibility कि सामने वाला का भी कुछ limitation है, which is okay, and मैं थोड़ा सा accommodate कर जाऊंगी। तो आई थिंक आपकी बुक पढ़ने के बाद हम लोगों को जो मुझे समझ में आया, आई ऑल्सो हैव अ डॉटर हु इज 17 अभी। तो उसकी जब भी शादी होगी, आई विल नेवर टेल हर कि एडजस्ट करना, आई विल टेल हर लव द वे दे आर, ओके, एंड एक्सेप्ट द वे दे आर। that's love. आई Love is थिंक I think that is the best way, rather than telling her कि adjust करना बेटा जाकर, I'll tell them love the way they are and accept the way they are. Because ये seriously मैं बार बार लोगों को जो नहीं सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगी, कुछ भी करके ना ये बुक एक बार जरूर पढ़ना। अगर आप सीरियसली पढ़ना मतलब पढ़ते हो और कुछ लाइफ में इतना सा भी चेंज लाना चाहते हो ना, और इन लॉस से कैसे प्यार करना है वो सीखना चाहते हो, तो दिस बुक इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें इतनी लाइफ केसेस हैं, लाइफ स्टडीज हैं, और बहुत बहुत डिफिकल्ट वाली इंग्लिश नहीं है। इतनी जर्नल इंग्लिश में ये बुक लिखी गई है कि आप और मैं कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है। एंड स्टिल इफ यू आर इन डाउट, तो अभी मैं सविता जी आपसे पूछूंगी, ऐसी कोई आप वर्कशॉप भी करते हो जिसमें आप हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, या मेरी या किसी और की, या जो आपकी आपको नहीं दिखाना चाहता, अपना फेस या आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता, उस केस में आप क्या कर सकते हो? हाउ डू यू डील विद इट? पहले तो आप मुझे वर्कशॉप का बताओ, ऐसा कुछ है वर्कशॉप जहाँ पे हम सीख सकते हैं और अपने आप को निखार सकते हैं? wow, yes, it's the workshop is called excellence workshop। वाह, ब्यूटीफुल और नेम। या 2 सेशन 3 आवर का वर्कशॉप होता है, जिसमें हम पूरी जो बुक की टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करते हैं।
और लाइव आपके साथ शेयर करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको कोच करते हैं कि आपका जो भी इशू है या आपके किसी फ्रेंड या फैमिली का इशू है उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे. Wow. And it's an experiential book. I think Preeti can say that also. I can vouch for that. Experiential book जो पढ़ेगा, as you rightly said, वो समझेगा और वो अपने आप practices develop करेगा. And may the whole world rise in love with the cause. हाँ, तो And ये वर्कशॉप, हाँ, मुझे तुमने ये भी पूछा था ये किसके लिए मेंट है, यस जिसमें यस, वो वाला क्वेश्चन पे भी मैं इसको, तो बुक है जो है जेंडर न्यूट्रल है, एज न्यूट्रल है. आप एक इन लॉ कब बनते हो? पहली बार. नॉट व्हेन यू गेट मैरिड, बट एज सून एज योर सिबलिंग गेट्स मैरिड. ट्रू, आई एग्री. एंड सिबलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है मैरिज में, जिसका कि इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है, इन्फ्लुएंस कम दिखता है. जब झगड़े होते हैं, इंटरफेरेंस होता है, वो इम्पैक्ट है. मगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्फ्लुएंस है भाई आपका, जो ऑब्वियसली आप जैसे इन्फ्लुएंस्ड हो अपनी अपब्रिंगिंग से, अपने सिबलिंग से, वैसे सामने वाला भी इन्फ्लुएंस्ड है. तो व्हाई नॉट टू एक्नॉलेज एंड थैंक देम फॉर देयर इन्फ्लुएंस, और फिर इम्पैक्ट होगा ही नहीं. और जैसे मैंने बताया, जो फर्स्ट मेरा था वो एक सन इन लॉ के साथ था, उसमें एक सिबलिंग इन लॉ भी इन्वॉल्व था. उसके साथ उसको एक मिला, उसको एक ब्रेक थ्रू मिला. और तो दिस बुक इज एज न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, एज वेल एज रिलेशनशिप इन लॉ न्यूट्रल. संबंधियों के लिए भी ये किताब है, सास ससुर के लिए भी किताब है, ननद देवर साला साली बहनोई और फ्रेंड्स के इन लॉ सबके लिए. मीन्स पूरा पैकेज है. हाँ. तो जहाँ जिस जिस घर में, मुझे ये लगता है जिस घर में ये किताब रहेगी ना, एक किताब, वो उस घर में इश्यूज नहीं होंगे. ये मुझे, दैट्स द कमिटमेंट. सो वन बुक वन फैमिली. वाह, मतलब दिस इज अ वेरी गुड, मतलब हम हैशटैग भी बना सकते हैं, वन बुक वन फैमिली, सो दैट पीपल शुड गो एंड एक्चुअली टेक दिस बुक. क्योंकि ये सिर्फ हेल्प ही नहीं करेगी, ये उनको एक्चुअली उस चीज से नॉट फाइट करने की, बट उस चीज को समझदारी से रिजॉल्व करने की शक्ति भी देगी. Yes, absolutely. And it has given lot many people. So it is not कि बस हवा में लिखी गई है ये बातें. मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं और उसके बाद ही किताब लिखी गई है, वरना ये काम We know that, we know साल that. से कर रही थी. वी नो दैट. और सबसे बढ़िया बात है कि मेरे हिसाब से लड़कियों से ज्यादा लड़कों को पढ़नी चाहिए बुक, बिकॉज लड़कों के साथ ना दोहरी लाइफ होती है. I एक तो, don't agree with this. यू डोंट एग्री? मैं आपको No. बताती हूँ क्यों. बिकॉज एक लड़के को अपनी मम्मी की भी बात सुननी पड़ती है कि उसने ऐसे कर दिया, Even और the बीवी की girls, भी सुननी पड़ती है. even I think it is pros and cons है दोनों के. एडजस्ट अगर तुम वहां से देखो तब तो ये बात भी सही है कि लड़कियों को ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है. तो ये हाँ, वहां से पढ़े, ये उसके लिए पढ़े, और बॉयज उसके लिए पढ़े, बट पढ़ ले. पढ़ लें और अपने रिव्यू शेयर करें ज्यादा से ज्यादा. वी दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon. आपको हम लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या जो भी हमारा लाइव देख रहे हैं, हम जरूर डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज दिस वीडियो will be definitely uploaded on my YouTube channel. It's just a 90-minute read. Kindle edition is just a 90-minute read. Wow. तो बहुत छोटी किताब है, जानकर लिखी है छोटी किताब, सो दैट इतनी तो लोग पढ़े, वरना तो 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ तो कई गाथा लिख सकती थी मैं. बट मैंने Kindle edition तो definitely they can reach out to, but अगर वो अपने घर में भी रखना चाहते हैं, so that, because ना बहुत सारे लोग पता है ऐसे शो ऑफ करते हैं, everything is okay and they don't want it. बट शायद जब बुक होती है ना सामने, तो आप एक बार को जरूर पढ़ते हो. बिकॉज yesterday I noticed my husband was reading this book, and which is really a strange thing for me. बिकॉज बहुत टाइम से ये, हाँ सीरियसली, ये पड़ी है मेरी टेबल पे. आई यूज टू रीड इट, और कल जब मैंने उनके हाथ में देखी तो आई डेफिनेटली आस्क्ड हिम कि ये क्या. कहते नहीं, बस वैसे ही देख रहा था. सो आई न्यू ही वांटेड टू रीड इट, बट मैं आ गई तो शायद वो सिर्फ देख रहे थे. बट तभी मैं अपनी आप भी थी, आप इन लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, सो दैट दे शुड नॉट थिंक दैट दिस इज जस्ट अ कैमरा थिंग or we are just having a talk show, but this is a reality, and that's why Savita ji is here. और जो आपकी शो का मकसद है, इस बारे में मैं बताना ये चाहूंगी कि इस बारे में बात कीजिए, गॉसिप मत कीजिए. देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर ब्रेक थ्रूज,
एंड और इसका इम्पैक्ट बहुत होता है, जैसे मैंने बोला कि अब फ्रॉम कस्टडी बैटल्स टू डिवोर्स टू सेपरेशन टू सक्सेशन टू डे एडजस्टमेंट टू जो ईगो पाइल अप होता है, वेंजियंस, ये सब में इन्वॉल्व होता है। तो इसको गॉसिप, and there is a forum, like we have these kind of shows, you can always reach out to me and there is this book available। तो इस बात पे बातें होनी चाहिए क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है बच्चों पे। लाइक जब प्रीति आप बता रही थी कि दादा दादी, लाइक इन माय केस, आई थिंक इट्स 7 years 8 years डाउन पहले, आई यूज्ड टू जस्ट रैंडमली, मैं तो दादी की फैन हूँ, मैं तो दादी की फैन हूँ। मतलब इट हैड नथिंग टू डू विद what they are thinking, it has everything for me and I was consciously practicing gratitude, so whatever it is, whatever good thing, मैं दादी की फैन हूँ। तो इट गिव्स उसका बहुत, आपने जो ये पॉइंट रेज किया ना कि इसका पेरेंटिंग पे बहुत असर होता है, क्योंकि बच्चे भी वही सीखेंगे। तो वहां से भी आप ये किताब पढ़िए, क्योंकि अगर आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, इनफैक्ट आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप समझ लो ये क्वेश्चन आया है प्रीति आपके दिमाग में। आई वाज जस्ट वंडरिंग, थिंकिंग टुडे ओनली कि जब मैंने किताब लिखी और फेसबुक पर आया था, मेरा बहुत लॉन्ग एसोसिएट थे, उन्होंने कॉल किया, कह रहे तुम किस इशू को टच कर रही हो, जनरेशन से हील नहीं हुआ है ये, वेर आर यू, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ओके थैंक यू, उसी की तो है, उसी की तो कोशिश है। सो दिस इज सच ए टॉपिक, तो प्लीज इस पे बात कीजिए। एंड आई एम श्योर हम लोग हैशटैग की भी बात कर रहे हैं, एंड मे बी अगर लोग चाहें कि इस कैंपेन से जुड़ना चाहें तो we can take up that also, because it's a service to the society, and remember it's a service to families and it's a service to judicial system. This is really a good thing, this is really a good thing कि हम लोग इसका हैशटैग बनाएंगे। दूसरा, we can start a we can start a page जहां पर जो लोग नहीं अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाह रहे या बात करना चाह रहे, they can come forward and talk about it, because this is what is needed। because जितने ज्यादा से ज्यादा, पूरे टॉक शो का सिर्फ यही मकसद है, इस ओ जिंदगी का, इट्स ऑल अबाउट यू चैनल का, कि पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दोस टॉपिक्स जहां पर उनको दे फील शर्म आती है हमें बात करने में। तो शर्म वाला टॉपिक नहीं है ये, दिस इज अ टॉपिक दैट एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट। बिकॉज यार आप अपने पेरेंट्स को साइडलाइन नहीं कर सकते हो, आपको उनके साथ रहना है। सो व्हाई नॉट एक हैप्पी एटमॉस्फेयर, एक वो डिफरेंट जोन में जहां पे आपके बच्चे कुछ डिफरेंट वैल्यूज लेकर जाएं। बिकॉज बहुत सारे लोग वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं सविता जी, बट एक्चुअल में क्या हम सही में मायनों में अपने बच्चों को वैल्यू सिस्टम दे पा रहे हैं? दैट्स माय पॉइंट। हम नहीं दे पा रहे, हम लोग खुद ही क्रिप करते हैं, यार तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया। What happens is, that's what I told you, क्या होता है कि आप करेक्ट वैल्यू सिस्टम तब दे पाओगे ना जब आपके पास खुद वो जानकारी होगी। अभी जो सिस्टम आप दे रहे हो, आपको वही सिस्टम मिला हुआ है, यार एडजस्ट करने ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, नहीं बन रही है तो यही दिया हुआ है। तभी मैं कहती हूँ दैट दिस बुक इज अ सेल्फ, कई लोग हमें तो नहीं है कोई इशू, आपको नहीं है, लेकिन आपके साथ जो आपके पास अगर कोई कल को आता है तो आप उसको कैसे बताएंगी? तो आप जिस डिफॉल्ट मोड से बताएंगी ना, एडजस्ट कर ले या अलग हो जा, प्लीज वो मत करना, किताब पढ़ लो और सही गाइडेंस दे देना बस। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड। इतना सा ख्वाब है। बट इतना सा काम करने के लिए सिर्फ एक स्टेप लेना पड़ेगा, अमेज़न पे जाके या तो किंडल एडिशन पढ़ना पड़ेगा या अपनी कॉपी खुद से ऑर्डर करनी पड़ेगी। इतना तो देखो स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई स्कूल नहीं सिखाएगा कि इन लॉज के साथ में कैसे बिहेव करना है। नोबडी विल टीच यू। हाँ, एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग व्हाई आई रोट दिस, आई आल्सो थॉट कि एक्चुअली क्या होता है कि सबसे ज्यादा आप देखो, सबसे बड़ा जो आपको मेच्योरिटी जो है ना, एज से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। अब देखो, जब एल्डेस्ट बच्चे की शादी होती है, किसी को अनुभव नहीं है कि एज अ ब्रदर इन लॉ वो कैसा होगा, एज अ मदर इन लॉ वो कैसे होगा, किसी को नहीं है अनुभव। तो अगर आप ये किताब पढ़ लेते हो ना, तो आपको वो अनुभव मिल जाएगा और आप पावरफुली डील करोगे। अभी तो क्या होता है, आपको अनुभव होता नहीं है, आप अपने माइंडसेट से चलते हो, और जब तक आपको अनुभव होगा, कुछ झटका लगेगा, तब तक चीजें बिगड़ चुकी होंगी। तो रीड दिस बुक। अगर आपको अनुभव नहीं भी है और कुछ चीजें आपको अनुभव से आती, तो इस किताब से आपको वो अनुभव मिल जाएगी, सो दैट आप पावरफुली लोगों को बता सकें कि तुम्हें ऐसे करना है।
फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि ऐसे आपने सुना होगा प्रीति, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर की बात घर में रखनी चाहिए, तो तुम अपनी माँ से मत बोलो, राइट? तो ये मेरे मेरे खुद के भी केस में, मतलब मैंने जब नई जस्ट आई जस्ट गॉट मैरिड एंड माय ब्रदर इन लॉ, blessed to have such a brother-in-law, let me tell you, very supportive, and he told me, भाभी ऐसा क्यों होता है कि मतलब लड़कियां अपने माँ से लड़ती है तब तो नहीं बताती, बट सास से लड़ती है तो माँ को बताती है, ऐसे क्यों होता है? Very important question he raised at that time, and it's a very important question because आपको पता नहीं होता है. Reading this book, a newly married can understand कि क्यों मुझे नहीं बतानी. भाई तुम्हारा अपना एक पर्सपेक्टिव होगा और तुम्हारी माँ का अपना एक पर्सपेक्टिव होगा. जैसे मैंने फादर इन लॉ का शेयर किया कि मेरे को बस वो जो भी करता है मेरे लिए दामाद, लेकिन वो जो मेरी बेटी परेशान होती है मैं उससे इम्पैक्ट होकर उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाती. So the girl must understand कि भाई मतलब मेरे पापा मम्मी का अपना ओपिनियन होगा, so I must keep it to myself, छोटी छोटी चीजें, and then try to mend it. And there was one more chapter जिसको मैंने डिलीट किया था एक्चुअली एडिट करते वक्त, which was about parents. कि पेरेंट बहुत पिवटल रोल प्ले करते हैं एक रिलेशनशिप विद इन लॉज में, एक मैरिज में भी. तो उसके लिए भी कैसे, क्योंकि आपकी जो पूरी आइडियोलॉजी है बच्चे की वो मोटा मोटी पेरेंट्स की होती है. बच्चा थोड़ा सा गिरता है तो पेरेंट्स उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको सपोर्ट करके, लेकिन उसको थोड़ा सा तो डील करने दो, थोड़ा सा गिरने दो, थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करने दो, थोड़ा सा सीखने दो. आप अपना ओपिनियन उस पर सुपर इम्पोज कर देते हो और डाइवर्स ओपिनियन होता है ऑपोजिट इन लॉज का, फिर वो मैच नहीं करता, वो क्लैश कर जाता है, फिर आपको परेशानी हो जाती है. ये जो पूरा टॉपिक है जो मैंने शुरू में तुमने बोला मेल्स का, कि मेल्स कितने, तो मेल्स को आई थिंक सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि हमें इन लॉज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, पेरेंट्स इन लॉज का. तो पेरेंट्स प्ले अ वेरी पिवटल रोल. इवन इफ यू सी अ मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ मदर, अगर मान लो हस्बैंड कहता है कि तुम काम अच्छा नहीं कर पा रही हो, उस वक्त मदर इन लॉ ये कह दे कि अच्छा काम इसने कब किया है, जैसे तुमने पढ़ाई की वैसे इसने पढ़ाई की, पहली बार तो जिंदगी में गृहस्थी संभाल रही है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम. तो पेरेंट्स प्ले अ पिवटल रोल. आई एग्री. डॉटर, मैं मदर और सन का बताया ना, अब मैं फादर और डॉटर इन लॉ का मैंने बताया तुम्हें शुरू में. द फादर जस्ट अप्रिशिएटेड, टोल्ड हर डॉटर, क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई sons are mothers and daughters are fathers, कहते हैं ना. तो अगर फादर अप्रिशिएट करता है, लगता है सन इन लॉ को, तो बेटी को दिखने लगता है कि हाँ ये बात तो पापा सही कह रहे हैं. पेरेंट्स, आई थिंक पेरेंट्स मस्ट रीड दिस बुक. ऐसे एवरीबडी मस्ट रीड दिस बुक. आई विल नॉट अंडर एस्टिमेट दिस स्टेटमेंट. आई एग्री. अभी आपसे बात करते करते, बिकॉज कुछ लोग जैसे लाइफ पे नहीं है एंड दे नो दैट जो शो इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द टॉपिक, तो वो पर्सनल व्हाट्सएप करके, एंड स्पेशली मेल्स, आई एम टेलिंग यू, they are asking few questions. Females तो हैं, if you allow me, I want to take 2-3 questions which are very relevant, because शायद वो public forum या Facebook पे आके नहीं पूछना चाहते थे लाइफ में, so they have personally questions भेजे हैं मुझे. Should I take it? Yes. तो पहले हम एक ये मेल ही है, he has specially written, don't reveal my identity. How do I tell my wife that her father is creating troubles in my married life? It's a very, very common question. And I must tell you, I think this is one of the reasons that many people are splitting up. Oh. Yes, yes. So, इसका तरीका है ये कहने का कि आप पहले ये देखिए कि आपका जो फादर इन लॉ है उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं. अब वो जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके लिए अप्लाई कर सकती हैं, आपके लिए नहीं भी अप्लाई कर सकती हैं. For example, let us see, he is a very kind, he does lot of social service. आपके जो फादर इन लॉ है वो बहुत ज्यादा सोशल सर्विस करते हैं. तो आप जब भी उनसे बात करें तो बोले आई एम सो थैंकफुल टू यू, आप इतना सोशल सर्विस करते हैं. आप अपनी वाइफ को बोलिए कि वाओ, नो योर फादर इज सो ग्रेट, इतना सोशल सर्विस करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, देखो इसी तरीके के काम वो भी करते हैं, मैं सोच रहा हूँ उस अंकल से उनको मिलवा दूं. So just start appreciating whatever good, even a single thing good, and then the daughter will realize, कोई भी लड़की खुश होगी ये सुन के. तो फिर उसके बाद आप
जब आपका एक फाउंडेशन बन जाए थोड़ा सा, फिर आप एक तो जब आप इतने अप्रिशिएट करेंगे तो ऐसे ही तो कंप्लेंट्स घट जाएंगी, टाइम कहाँ मिलेगा कंप्लेंट्स का डॉटर की तरफ से। और आप That is डॉटर good. को फिर वो अपने आप में कॉन्वर्सेशन ही बदल जाएंगे, फिर आप उनको धीरे से कह सकते हैं। लाइक एक अनदर टॉक शो में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप फीडबैक और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है काइंड ऑफ। तो मैंने कहा फीडबैक यू कैन से विद ग्रेटिट्यूड होता है कि ठीक है तुम 5 पॉइंट्स मैंने सोचे थे, थैंक यू फॉर 3, एंड you can think of, you can consider too, but I still am thankful to you, right? और इवैल्यूएशन होता है भाई जी तुमने 3 तो अच्छे किए बट 2 को तो तुम्हें करना था ना, ये नहीं किया। सो इट्स अ स्टार्क डिफरेंस। तो आप अपनी स्पाउस को, अपनी वाइफ को बोलो, पहले तो आप सिर्फ अप्रिसिएशन पे काम करो और फिर चुपके से बोलो कि देखो थोड़ा सा इस मामले में ये दूर रहे या हमें सोचने दें, मैं और बाकी चीजें उनसे सीखना चाहूंगा। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। यस, That's really a good thing. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है माय हस्बैंड इज ममाज बॉय। ये बहुत कॉमन हम लोग सुनते ही हैं एंड आई डोंट लाइक इट। शुड आई से समथिंग, शुड आई इंटरफेयर और शुड आई कीप मम? देखिए ममाज बॉय है तो सबसे पहले तो एक बात जान लो कि अगर उनमें कुछ, हम लोग जो नेगेटिव्स होते हैं ब्लेम तो हम लोग कर देते हैं पेरेंट्स को, राइट? बट उसमें जो पॉजिटिव है, क्या कभी उसके लिए थैंक यू बोला है पेरेंट्स को? जब नेगेटिव्स के साथ वो पैदा नहीं हुआ तो पॉजिटिव्स के साथ भी तो हुआ नहीं ना। किसी ने दिया है उसको, उसने किसी को कॉपी किया है, सोचा है। बहुत सारे आपने देखे होंगे सक्सेसफुल मैरिज रिलेशनशिप्स में, दे आर ग्रेट विद देयर स्पाउस and all they take credit is he's really extraordinary, no? He's very different from his family members, very typical, बहुत typical है ये। मेरे को लगता है कि मतलब ठीक है, कमल ऐसे ही नहीं खिलता भाई। आई एग्री। तो mama's boy को just appreciate, I think it's you can start with just appreciating the mama first। आप बॉय को जितना कर रहे हो, मतलब marital relationship is different ball game altogether. Just do acknowledge your husbands or wives, mothers. Like really acknowledge them for the little, for the big. बहुत सारी सुना होगा आपने, कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को तो करते हैं, करेंगे ही। both sides, नाना नानी दादा दादी दोनों की तरफ से होता है ये कंप्लेंट। But I have never treated it like that. I have always thought that there is another set of grandparents who love my children so much. ग्रेट ग्रेट, आई एग्री। मतलब ये छोटे छोटे टिप्स हैं एक्चुअली, ये क्वेश्चंस में जो पूछ रहे हैं छोटी छोटी चीजें हैं। आई थिंक जब ये बुक पढ़ लेंगे ना, बहुत लोगों की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अदरवाइज दे कैन ऑलवेज अटेंड योर एक्सीलेंस वर्कशॉप एज द नेम सेज। सो आई विल आस्क यू डेफिनेटली, बट एक और मेल का क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी आई कैन रीड इट। Yes, yes. I don't appreciate my in-laws interfering in my family matters. My wife never tells her parents to back off. What can be done? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कोरा पे भी मैं आंसर देती हूँ। तो कोरा पे, हाँ कोरा पे भी मैं आंसर, अक्रॉस द ग्लोब आता है ये क्वेश्चन बाय द वे। एंड एज in fact the book is the only book in the world Yes, on relationship with in-laws। और तो हाउ, तो मैंने उस कोरा में भी जवाब दिया था कि लेट्स नॉट थिंक अबाउट बैक ऑफ, लेट्स थिंक अबाउट how do I handle this, how do I take care of this, that's the right word। कि वो बैक, मतलब कि मैं कैसे इस इशू को संभालूं कि वो इंटरफेयर ना करें, राइट? दिस इज द राइट टर्मिनोलॉजी टू से। तो अब आप एक बार आप समझ गए कि जैसे आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनके भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, एंड दे कैन हैव देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड यू कैन जस्ट चूज टू, अगर आप अग्री नहीं करते हो आप उनको फिर भी सुन सकते हो, जस्ट लिसन विद एन ओपन माइंड एंड थैंक देम दैट दे हैव गुड पॉइंट्स ऑफ व्यूज। बट हमारी परिस्थितियां कुछ अलग हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसमें अप्लाई करेगा।
मेरी फैमिली की परिस्थितियां अलग हैं, इट इज माय फैमिली मैटर। तो मुझे इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा जो भी डिसीजन हो वो उनसे अलाइन। एंड एज फार एज एनी इम्पैक्ट, आपको जिस बात की चिंता है कि आपकी बेटी पर उसका इम्पैक्ट होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। तो आई थिंक इस तरीके की अगर कॉन्वर्सेशंस होंगी तो ये, क्योंकि हर पेरेंट बहुत प्यार करता है अपने बच्चों को, आई थिंक द मोस्ट, आई थिंक जो प्यार का सबसे बड़ा दर्जा है वो, और अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, आई थिंक वो पेरेंट ही सिखाता है। I know, that's true. That's very true. आप चाहे जितने भी लैला मजनू गाते गा लो, बट नथिंग बीट्स द लव ऑफ द पेरेंट। एंड एक्चुअली इट इज एक्सपीरियंशियल, क्योंकि आई रिमेम्बर माय फादर यूज्ड टू से कि जब तुम बनोगे ना तब पता चलेगा। I know. And actually, and I think this is also very, people don't understand this कि ऐसे क्यों कर रही है, जब पता चलेगा तब बनेगी। अरे भाई बात तो सही है, she will got to know only then। तो तब तक थोड़ी empathetic रहो भाई। Anyway, I think No, no, मैं आपको इसीलिए मैं I'm smiling because I still remember, अभी तो my father is not there anymore, but जब वो थे ना, और when I got married, और जब फिर मेरी sister, हम दो sisters ही हैं, and when she got married, तो एक दिन ऐसे ही हम लोगों का डिनर था उनके घर पे, and we were there, और ये दोनों दामाद और ससुर गायब थे। So I just walked off कि कहाँ गए पापा, और कहाँ गए ये लोग सब। तो मैंने देखा मेरे पापा मेरे हस्बैंड और जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोल रहे हैं, बेटा तुम खुश तो हो। एंड आई थिंक आई वाज सरप्राइज्ड कि एक फादर इन लॉ ये पूछने की बजाय कि मेरी बेटियां खुश है कि नहीं, वो ये पूछ रहे हैं बेटा तुम खुश हो। सो दैट ट्रिगर्ड मी, और शायद तभी से डे वन से ही शायद मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स वो मेरे पहले हैं, और मेरे हस्बैंड को चीजें बाद में याद रहती हैं उनकी, बट वो मुझे पहले याद रहती हैं, और सेम गोज विद माय सिस्टर। तो ये एक बहुत ही बड़ा और यूनिक सी चीज है, जबकि मैंने आपको जैसे बोला मेरी सिर्फ हम दो सिस्टर्स ही हैं, तो शायद जो मेरी छोटी सिस्टर है वो आज भी मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहती है। और लड़के को थैंक यू है सबसे बड़ा, उस लड़के को जो अपने पेरेंट्स से उनका करता है, मेरी सिस्टर भी करती है, जाते हैं, बट बिकॉज मेरे पेरेंट्स ओल्ड थे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि कोई तो रहेगा, क्योंकि ये वो लोग दो भाई थे, तो दे डिसाइडेड। तो आई थिंक ये सब पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं, और हम ये छोटी छोटी चीजें अगर थैंक यू में बोल दें, क्योंकि एक ससुर अपने दामाद से पूछ रहा है कि बेटा तुम खुश हो, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। that's rising in love with your या in-laws। तो Wow। आई थिंक ये सब फैमिली सिखाती है। तब तो खैर उन्होंने बुक नहीं पढ़ी थी, बट आज शायद वो अगर होते और ये शो सुन रहे होते तो शायद बहुत खुश होते। तो जो मैंने लिखा है ना वो होता आया है। आपने कम देखे होंगे सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद इन लॉज, मगर ये होता आया है, और सक्सेस मंत्रा वही है। मैंने किताब को करंट पर्सपेक्टिव में लिखा है, आज की और जनरेशन के लिए। और जिन्होंने मतलब नहीं पढ़ी, मैं बार बार सविता जी उनको मैं कैसे बोलूं कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप ये शो देख रहे हो तो सिर्फ एक बात मान के, सिर्फ बुक की पब्लिसिटी के लिए नहीं, बेशक आप बिल हमारे घर पे भेज देना, नो वरीज, बुक बहुत महंगी नहीं है, एक बार जाके सिर्फ पढ़ लो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप तीसरे पेज तक पहुंचोगे, चलो आप बुक नहीं भी पढ़ रहे हो ना, सिर्फ किंडल पे जाकर सिर्फ 3 पेज पढ़ना, आई कैन वाउच फॉर दैट बुक 250%, आप वो बुक पूरी पढ़ के ही उठोगे। एंड दैट्स, आई कैन वाउच। मैं सविता जी को नहीं जानती हूँ, हम लोग किसी फोरम में ही मिले थे, कैसे हम मिले, इनकी बातें कैसे सुनी। लॉयर से सब लोग डरते हैं, बट ये एक ऐसी लॉयर हैं जो घरों में रिलेशनशिप्स को शायद सुधारती हैं, शायद उनको एक बेटर कंडीशन पे लाती हैं। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन लॉज, इफ यू थिंक कि हमें आगे बढ़ के स्टेप लेना है, तो यू आई विल बी एडिंग हर कंप्लीट लिंक्स, हर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज कनेक्ट विद हर, इफ नॉट पब्लिकली, पर्सनली, जिस भी वे में, because our motto is just to help you through our medium, that's it's all about you, through our talk show which says those topics, which touch those topics जो कोई नहीं छूता है। And Savita ji, I thank you, I really thank you from the bottom of my heart, and from my whole team wants to thank you for coming here and giving us this advices, because nobody शादी टूटना बहुत इजी होता है, शादी को जोड़ के रखना इज द टफेस्ट थिंग, और आप जैसे लॉयर्स की सीरियसली हम लोगों को जरूरत है।
rather than बहुत इजी होता है किसी भी लॉयर को हायर करो आजकल, ये ना वर्ड बहुत इजी होता है, चलो यार अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, बट उस चीज से हटकर जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, इट इज कमेंडेबल, मतलब आई शुड से इट इज कमेंडेबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, गिविंग योर टाइम आउट ऑफ दिस बिजी शेड्यूल एंड शेयरिंग दीज ब्यूटिफुल थिंग्स दैट नोबडी कैन। आप हमारे व्यूअर्स से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आई वांट यू टू से समथिंग सो दैट दे कनेक्ट विद यू, और वो फेयर ना हो कि उनकी आइडेंटिटी रिवील होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा। प्लीज से समथिंग। नहीं, आइडेंटिटी रिवील की तो वो चिंता ना करें। मैं जो भी टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करती हूँ वो नेम चेंज में शेयर करती हूँ, और उसका मकसद ये होता है कि लोग जुड़े, लोग आकर बात करें इस बारे में। बहुत सारे लोग समझिए रिजाइंड है इस टॉपिक पे कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप उस लेवल पर हैं, या बस शुरुआती के दिनों हैं, न्यूली वेड है, या आपके घर में कोई शादी हुई है भाई बहन की, या आपकी शादी सही है बट आपकी भाभी के साथ इशू है आपकी मदर की, तो भी आप कनेक्ट कीजिए। आइडेंटिटी रिवील का तो हमारा तो वैसे भी कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोफेशन है, एंड आई विल बी मोस्ट प्रिविलेज टू हेल्प यू। The book is there. I do one-on-one sessions and I do workshops, and in whichever manner, it's a privilege to help you, support you, and with the only prayer that may the whole world rise in love with their in-laws. Wow. So on this note, I want to end this conversation, which was a lovely conversation. And thank you so much for coming over the show. And I want कि एक बार हम और इनसे बात करेंगे. And I want people to come forward. अगर आपको लगता है कि आप ओपन फोरम में हमें क्वेश्चंस नहीं भेज सकते हैं, तो आप पर्सनली भेजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स होंगे. सविता जी का भी मैं स्पेशली लिंक डालूंगी, सो बिकॉज आई वांट पीपल टू कनेक्ट विद हर एंड गेट इट रिजॉल्व्ड. बिकॉज ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ये हर घर का इशू है. आई मस्ट से हम लोग फॉरवर्ड आए नहीं आए, हम लोग बोले नहीं नहीं मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बट ये हर घर का इशू है. सास को बहू से प्रॉब्लम है, बहू को सास से प्रॉब्लम है, फादर इन लॉ को अपने सन इन लॉ से प्रॉब्लम है, सन इन लॉ को फादर इन लॉ अच्छे नहीं लगते, या मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है. प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टॉक. इसमें कोई हर्ज नहीं है. शी इज नॉट अ डॉक्टर, बट शी कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस where you will thank her at the end of the day कि आप सही जने के पास गए. बिकॉज कई चीजें आपके फ्रेंड्स नहीं रिजॉल्व कर सकते, बिकॉज फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फ्रेंड्स सिर्फ इतना कहेंगे अलग हो जाना नहीं जम रही तो, बट अलग होना इज नॉट अ सोल्यूशन. So please come forward and talk about it. And on this note, I'm ending this talk show, O Zindagi, on my channel. It's all about you. And please share more and more topics that you want us to take up so that we can call the experts and talk to them. And thank you so much, Savita ji. And I'll be getting in touch personally with you if I get some few new queries. Thank you so much. Thank you. Welcome.